ویلکم بیک ناظرین نارتھ ناظم میں 2 روز قبل بہن اور بھائیوں کے لاپتہ ہونے کے معاملے نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح ایک چرچا بنا، جس کے بعد بچے تو واپس مل گئے، مگر اس کے باوجود اب تک تفتیش کاروں کی تحقیقات اور تفتیش جاری ہے۔ مختلف جانب سے جو ہے وہ بیانات سامنے آئے جس میں تضاد دیکھا جاتا ہے۔ بچے کچھ اور بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ان کی والدہ کچھ اور بات کرتی دکھائی دیتی ہیں، اور ساتھ ساتھ تحقیقاتی ادارے بھی اپنی ایک رائے رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ تشدد کا معاملہ تھا خالہ اور ماموں کی جانب سے، دوسری جانب اغوا کاروں کی بھی صورتحال جو ہے بتائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر تفصیلات جو مکمل طور پہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسد زیدی سے، جو چیف رپورٹر ہے، اور انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ اسد زیدی صاحب، تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیں، تضاد آ رہا ہے، چیزیں سامنے ممکن نہیں بن پا رہی، کیا ہے؟ اور ابھی بھی عدالت نے واپس دوسری خالہ کے پاس ان کی نگرانی میں دینے کا فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے۔ جی اسد زیدی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کوہرام مچ گیا، اور اس کوہرام مچنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ سوشل میڈیا پہ ہر طرف دونوں بہن بھائیوں کی تصویروں کے ساتھ اس واقعے کی گونج تھی۔ نارتھ ناظم آباد کا علاقہ ہے بلاک ایچ، جہاں سے 2 روز قبل بہن اور بھائی اچانک رات کو لاپتہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چیز لینے نکلے تھے اور لوٹے نہیں۔ اس کے بعد پولیس بھی حرکت میں آتی ہے، تحقیقاتی ادارے بھی حرکت میں آتے ہیں، رینجرز بھی حرکت میں آتی ہے، اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بیانات سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دونوں بچے مل جاتے ہیں۔ اور ملنے کے بعد بھی اب تک 2 روز گزرنے کے باوجود بھی اب تک کوئی تحقیقات جتنی بھی سامنے ہے اس کے اندر کوئی بھی اہم پیش رفت نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب بچے لوٹ کر آتے ہیں تو جو تحقیقاتی ادارے پولیس ہے، اور پھر جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، اور پھر رینجرز ان کو ریکور کرتی ہے، اور پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر پولیس کو جو بیان بچے دیتے ہیں، بظاہری طور پر اس بیان میں بچوں کا موقف یہ تھا کہ وہ کیونکہ ان کے والدین میں علیحدگی ہو چکی ہے، اور اس علیحدگی کے بعد ان کی والدہ بیرون ملک ملازمت کرتی ہیں، اور وہ دونوں بچے نانی، خالہ اور ماموں کی طرف کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں بچے بظاہر شکایت کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ان پہ تشدد کیا جاتا تھا، اور پھر جو ہے ان سے گھر کے کام کرائے جاتے تھے، اسکول نہیں بھیجا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد مختلف جو بیانیے ہیں بچوں کے بھی سامنے آئے، اور اس بیانے کے بعد جہاں ایک طرف جو سوشل میڈیا پہ ایک کوہرام تھا وہ تھما، اور اس بات کو تقویت ملی کہ ہو سکتا ہے کہ گھریلو کوئی مسئلہ ہو اور بچے اپنی مرضی سے چلے گئے ہوں، لیکن دوسری جانب پولیس کے تحقیقاتی اداروں کو یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ میسیجز آئے جو کہ ورچوئل نمبر سے آئے، اور وہ بھی تاوان کے لیے آئے، تو ان دونوں باتوں میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بیانیے کے بعد جو ہے بیرون ملک مقیم بچوں کی والدہ نے پھر جو ہے میڈیا سے بات کی، اور اپنا ایک میسج میڈیا کو دیا کہ بچوں کو کسی زیر تسلط ہے کسی کے، اور کسی کے کہنے پہ یہ سب بیان دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہے معاملہ، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور ان سے یہ بیان دلوایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی سچویشن 2 دن سے بنی ہوئی ہے۔ آج کیونکہ معاملہ جو ہے وہ چلا گیا تھا، ایک طرف اہل خانہ کا بیان تھا، دوسری طرف بچوں کا بیان تھا، تیسری جانب والد کا بیانیہ تھا، اور ایک اور جانب پھر والدہ کی جو بیانیہ تھا، جس میں وہ اپنے گھر والوں کو ڈیفینڈ کرتی دکھائی دیتی تھی کہ اس معاملے سے میرے گھر والوں کو دور رکھا جائے، کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بچوں سے زبردستی بیان دلوائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کیس عدلیہ کے پاس پہنچا، اور پھر اعلیٰ عدلیہ نے آج اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دینا تھا، تو پہلے تو بچوں کی حوالگی کا معاملہ تھا کہ بچے اب کس کس کو کے دیے پاس جائیں، رہیں؟ تو بچے پھر ایک اور خالہ جو ان کی تھی بچوں کی، ان کے حوالے کیے گئے۔ والد کی طرف سے بھی وکیل پہنچے، اور انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ بچے میرے حوالے کیے جائیں کیونکہ ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور پھر دوسری جانب والدہ کی جانب سے بھی وکیل تھے، اور پھر سرکاری وکیل جو ہے وہ بھی تھے۔ تو اس کے بعد عدالت نے فیصلہ ایک اور خالہ کے حق میں دیا کہ ابھی فی الحال جب تک یہ کیس ڈسکلوز نہیں ہوتا تو بچوں کی پرورش خالہ کریں گی۔ اس کے ساتھ میں علی رضا یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب بھی اس واقعے کو ہائپ کریٹ ہوئی تو اس کے بعد ڈاکٹر عاصم
जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से फिर बच्चों को बुलवाया गया और फिर उन बच्चों की कफालत की भी बात की गई और उसके साथ साथ उनकी एडमिशन और स्कूल की फीसिस की जो बात आ रही थी कि बच्चों को घर बिठा दिया गया है, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो उनकी जानिब से कहा गया कि इन बच्चों की तमाम तर अखराजात स्कूलिंग के वो पे करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध ने भी इसका नोटिस लिया और आज गवर्नर सिंध की जानिब से भी मुलाकात की गई, गवर्नर हाउस में बुलाया गया दोनों बच्चों को और फिर उनकी जिम्मेदारी की भी बात गवर्नर सिंध की जानिब से की गई कि मैं इन दोनों बच्चों के अखराजात उठाने के लिए तैयार हूं और इनके जितने भी अखराजात हैं वो तमाम गवर्नर साहब का कहना था कि मैं पे करूंगा। तो जहां एक तरफ बच्चे घर की जानिब से मामला सामने है, दूसरी तरफ तहकीकाती इदारे अब तक तहकीकात कर रहे हैं, फिर बयानिए में तजाद है, चाहे बच्चों का बयानिया हो, उनके अहले खाना का बयानिया हो या फिर उनकी वालदा हो या फिर वालिद। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो पुलिस का बयानिया है कि वर्चुअल नंबर से पैसे मांगे गए, तो ये भी तवान मांगा गया, तो ये भी उसके ऊपर तहकीकात जारी है। जी, अभी तहकीकात बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी तफसीलात से मुकम्मल तौर पे आगाह करने के लिए। अभी तहकीकात जारी हैं, पुलिस की जानिब से जो है तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया और बताया गया है कि जी एक CCTV पुलिस को मौसूल हुई है जिसके अंदर गाड़ी को जाते हुए देखा जा सकता है। ताहम इसी टॉपिक के ऊपर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैज़ान रावत साहब भी दिखाई दिए बच्चों के साथ और थोड़ा उनसे भी उनकी मालूमात हासिल करते हैं क्योंकि इसको लेकर बड़े संजीदा वो भी दिखाई दिए। और उसके बाद डॉक्टर आसिम साहब और फिर गवर्नर साहब के साथ भी तस्वीर जो हैं वो सामने आ रही थी और बताया गया है कि जी उन्होंने क्या किरदार अदा किया। इस हवाले से जानते हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ान रावत साहब टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा अहवाल बताइएगा, डॉक्टर साहब ने भी जो है इसके ऊपर पेशकश की है कि जी तालीम के मामला सारे हम ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लेने का। जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 दिन से जो मामला चल रहा था तो ये हमारी नॉलेज में आया सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वाक़या है, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हम यहाँ के उम्मीदवार भी आपको पता है और सारे मामला जो आवाम के हैं वो देख रहे होते हैं। तो उसमें SSP साहब से रब्ता हुआ। SSP साहब ने बताया कि थोड़ा सा शक इनके वालिद की तरफ जा रहा है, तो ये चीज़ों को हम देख रहे हैं कि बच्चे कहाँ गए हैं। तो फिर मेरी फैमिली से बात हुई, मामू से, इनकी सलमान नाम है उनका। जी जी। तो उसके बाद उनको फिर मैंने कांटेक्ट किया तो पता चला वो थाने में है। मैं थाने चला गया, थाने में सचिव साहब थे और जो यहाँ के कमांड एंड कंट्रोल के जो कैमरास लगे हुए उन पर हमने मॉनिटर किया कि देखते हैं कहाँ पर है। तो SHO को साथ लिया हमने कुछ साइट पे जाना चाहते हैं क्योंकि वो जो साइट थी वो हमारे जो एच ब्लॉक है, वो एरिया, वो गली, वो सब जानने वाले ही हैं। तो हमने कहा वहाँ चलते हैं, किसी के घर के कैमरा या किसी के रेस्टोरेंट के कैमरे से हमें पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन है। तो इतने में हम ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे, उनके मामू को कहीं से फोन आता है, रेंजर्स वाले भी साथ आ गए थे, पुलिस भी साथ थी। तो उनके मामू को कहीं से फोन आता है कि जो बच्चे जो है पारी मॉल में है तो आप हमारे साथ चले, हमें डर लग रहा है। वहाँ से हमने पुलिस को साथ लिया, रेंजर्स को साथ लिया, इनको साथ लिया, पारी मॉल गए, बच्चों को वहाँ से रिकवर किया, रिकवर करके SSP ऑफिस हम लेके चले गए निशान सिद्दीकी साहब के पास और वहीं से हमने सारा राब्ता किया इनकी फैमिली से, दूसरे लोगों से, जो बाकी लोग थे, वालिद साहब, इनके खाला और डिफरेंट लोग। तो बच्चों ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि जो दूसरी खाला है सोनिया खाला और जिनको वो फरहीन करके उनका नाम है और उनके घर हम रहना चाहते हैं। वो पता चला कि वो एक गली पीछे वो फरहीन रहती हैं और ये जिस घर में रह रहे थे वो नानी का घर था। नाना का रिसेंटली तशद्दुद का मामला आया था, इसमें कितनी सदाकत आप समझते हैं फैज़ान रावत साहब है कि ये किस चीज में तशद्दुद का मामला? बच्चों ने कहा कि जी हमें अच्छा हाँ, तशद्दुद देखें तशद्दुद का ऐसा मैं सच तो नहीं कह सकते। हमने जो बच्चों से पूछा वो सारी चीजें हुई, तो वो घरों में जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है कि माँ बाप तावान, उनकी वालदा कह रही है तावान आया, तावान मांगा जा रहा था। अच्छा हाँ, ये ऐसा था कि वो जो इनके नंबर्स वगैरह गए तो वो आपको पता है अपॉर्चुनिस्ट हर जगह होते हैं। वो फोन किया होगा किसी ने इनको, डम कॉल जो होती है, क्या कहते हैं। ओके, अच्छा हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे फैज़ान रावत साहब। डॉक्टर आसिम साहब ने अब पेशकश की है, ऐलान किया, ये फैसला हो गया कि इनकी जो तालीम अच्छा जी, हमने ये देखा ना कि बच्चे यहाँ से गए क्यों, निकले क्यों घर से, तो हमें ये महसूस हुआ कि यार इनकी तालीम जो है ना वो रुकी हुई है। कोविड के बाद से अब तक इनकी तालीम कंटिन्यू नहीं थी। तो डॉक्टर आसिम साहब ने कहा कि हम इनको, पहले तो मैंने ऑफर की थी कि मैं इनकी कफालत करता हूँ, तालीम का बेड़ा उठा। उन्होंने कहा कि हमारे तो स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है और जाउद्दीन ट्रस्ट एक बना हुआ है और जाउद्दीन ट्रस्ट के वो चेयरमैन भी हैं। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इनकी
ग्रेजुएशन तक की जो तालीम है उसके बीड़ा उठाया, और उसके बाद भी अगर तालीम हासिल करते तो इस मुल्क से बाहर भी तालीम वो हासिल कर सकते हैं। तो ये तालीम का इनका मसला हल हो गया है, और बाकी जो यूनिफॉर्म का, बुक्स का, ये सब हम बेयर कर लेंगे। अब जो घर में रहने का है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ठीक वालदा है। की कस्टडी है, वालिद की कस्टडी है। हमें कस्टडी से प्रॉब्लम नहीं है, वालिद की हो, वालदा की हो, खाला की हो, नानी की हो, मामू की हो, किसी भी सूरत में किसी की भी मगर कस्टडी तालीम हो, और तरबियत हम के जो है मामला जो है वो हम डॉक्टर आसिम साहब ने पेशकश की और वो इसको देखेंगे। बहुत शुक्रिया फैज़ान रावत साहब अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। फैज़ान रावत साहब और डॉक्टर आसिम गवर्नर साहब ने भी इस मामले को संजीदगी से लिया और देखा। ताहम जो मामला सामने आया कि कोविड से अब तक तालीम के सिलसिले रुके हुए थे, उसके ऊपर एक अहम अच्छी चीज़ ये है कि जी डॉक्टर आसिम साहब ने इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी तालीम का जो मामला है, इस तरह बहुत सारे चीज़ें हाईलाइट होती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। हम मज़ीद भी नाज़रीन कोशिश करेंगे कि चीज़ों को आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने की मुकम्मल तौर पे कोशिश करें। ये सूरत हाल काफ़ी अरसे से जो है इसको हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात जब भी आते हैं कि जिसके अंदर बच्चे जो है वो लापता हो जाते हैं, तो सारे जो भी सोशल मीडिया पे चीज़ देखता है उसको यकीनी तौर पे दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। हर शख्स मोहब्बत करता है अपने बच्चों को और वो तसव्वुर कर रहा होता है कि शायद मेरा दिल का टुकड़ा अगर इस तरह अलग हो जाए, गुम जाए, तो बहुत सारे ख़यालात आ रहे होते हैं, बहुत सारी बातें आ रही होती हैं। तो हम इस वाक़े को जब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था तो बहुत सारी फैमिलीज़ भी डिस्टर्ब हो रही थी। जहाँ हम अब मिल चुकी हैं, अब चीज़ें अदालत के हवाले से जो है वो चीज़ें मज़ीद सामने आ सकेंगी। हम कोशिश करेंगे इसको इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस की मज़ीद हो सके कि क्योंकि क्यों तावान कौन मांग रहा था, क्या नंबर थे, उसके ऊपर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लेगी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका। अपनी मेज़बान रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।